Semester to be a student. This is my first class along with you. Anuja ma'am is here. I'm going to teach you, first you open your all syllabus and see C4 means course 4 in which psychology of individual differences. Under this chapter, unit 1, that is personality, where I'm going to teach you today personality. So, under this personality, we have four things to study: meaning and nature of personality, biological foundation of personality, sociological culture, and upper factors of personality, psychodynamic and humanistic approaches. So here I'm going to discuss about the personality. First of all, would like to know what is personality. Personality, what do you mean by personality? Personality may be hard to define, but we know it when we see it. We all make personality judgment about the people we know. A major part of coming to understand ourselves is developing sense of what our personality characterized are. Even we form impression about the personalities of people we do not know but have only read about. There's when psychologists define personality, they train to refer to qualities within a person, characteristics of a person's behavior, or both. In a famous definition, psychologist Gordon Allport 1937 mentioned both inner qualities and behavior, but he emphasized only the inner qualities more. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system and determine his unique adjustment to his environment. In a more recent definition, psychologist Walter Mischel, 1976, mentioned both inner process and behavior, but he also emphasized more on behavior. Personality, he wrote, consists of the distinctive patterns of behavior, including thoughts and emotions, that characterized each individual's adaptations to the situation of his or her life. No single definitions of personality is acceptable to all psychologists. However, most agree that personality includes the behavior patterns a person shows across situation or the psychological characteristics of the person that lead to those behavior patterns. Personality has been studied in a number of different ways. Some have developed broad theories to explain the origins and makeup of personality. Others have focused only on one or two issues, such as the influence of heredity on personality. The first approach, theory constructions, was popular for many years. As a result, we have many broad personalities theory. Much of this chapter will focus on them. Most of these broad theories can be grouped into four categories: type and trait approaches, which focus on people's characteristics. Then, I'm also going to explain in Hindi, or those are students who understands only Hindi. So I'm going to explain also in Hindi again. What do you mean by personality? I mean कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विषय में काफी इंटरेस्ट भी दिखाई है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कि ऑलपोर्ट ने भी अपनी परिभाषा दी है। और व्यक्तित्व ऑलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व की दी गई जो परिभाषा है, उन्हें तो सबसे पहले जितनी भी व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषा दी गई हैं, और सभी परिभाषाओं को ऑलपोर्ट ने एकत्रित किया और उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, और इन परिभाषाओं को उन्होंने 5 श्रेणियों में विभाजित भी किया है। उनका विशेष अध्ययन विभाजित करके काफी विशेष रूप से अध्ययन किया। परिभाषाओं के क्रम में सबसे पुराना यानी सबसे पहली परिभाषा
व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति से संबंधित संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद जैसा हम सब जानते पर्सनैलिटी है, जो कि लैटिन शब्द पर्सोना से बना है और जिसका अर्थ नकाब यानी मास्क से होता है, जिसे एक्टर लोग पहना करते हैं। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के अंदर के आधार पर परिभाषित किया गया है। और जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा जितना ही भड़कीला होता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा भी समझा जाता है, और जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता है, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता है। परंतु ऐसी परिभाषाओं को तुरंत ही कुछ वैज्ञानिकों ने इसे बिल्कुल निरर्थक बतलाया है और घोषित किया गया। और इसके बाद धीरे एक एक करके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषा दी। ऐसी परिभाषा जो कि काफी बढ़ते गए। आउटपुट के अनुसार व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन यानी एडजस्टमेंट को निर्धारित करते हैं। आउटपुट ने अपनी परिभाषा में यह भी बतलाया है कि व्यक्तित्व के भीतरी गुणों यानी इनर क्वालिटीज तथा बाहरी गुणों या बाहरी व्यवहार दोनों को सम्मिलित किया गया। फिर भी उन्होंने व्यक्तित्व की भीतरी इनर क्वालिटीज पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल दिया है। उसी तरह से आइजिंग 1952 में भी व्यक्तित्व के चित्र प्रकृति यानी ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन पर करीब एक अस्थायी और टिकाऊ संगठन है जो कि वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन पर निर्धारित करता। और उनकी इस परिभाषा तथा आउटपुट की परिभाषा में काफी समानताएं भी है। आइजिंग ने भी आउटपुट की तरह व्यक्तित्व के को परिभाषित करने व्यक्तित्व के भीतरी गुणों यानी इनर क्वालिटीज तथा पर ज्यादा बल दिया है और बाहरी व्यवहार जो है इनका बिहेवियर पे को सम्मिलित किया है, परंतु भीतरी गुणों पर अधिक प्रेशर डाला। और इस तरह से आउटपुट तथा एजिंग दोनों के ही परिभाषाओं में व्यवहार पर पक्ष पर काफी कम बल डाला गया है। परंतु चार्ल्स तथा वॉल्टर मार्शल 1981 ने ऐसी परिभाषा दी जो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच अधिक लोकप्रिय हो गई है और जिसमें आउटपुट तथा एजिंग की परिभाषा की कमी को दूर भी किया गया है, क्योंकि इन परिभाषाओं में व्यक्ति की भीतरी गुणों इनर क्वालिटीज के अलावा व्यवहार पर भी समान रूप से बल डाला गया है। चार्ल्स 1968 के अनुसार व्यक्तित्व से तात्पर्य कमोवेश अस्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्तित्व के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में अन्य लोगों के व्यवहार से अलग रखता है। उसी तरह वॉल्टर मैशल के अनुसार प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी को परिभाषित करने के साथ साथ होने वाले समायोजन पर भी निर्धारण करता है। उसी तरह बैरन 1993 के अनुसार व्यक्तित्व में के संवेगों, चिंतनों तथा व्यवहार के अनूठे एवं सापेक्ष रूप से स्थिर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को सामान्य परिभाषित किया गया है। इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाओं को व्यक्तित्व के विषय में अपनी परिभाषाएं दी है और विभिन्न प्रकार से उसको डिफाइन भी किया है। अब इसके बाद हम जो मेरा क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगी। आज के लिए इतना ही रहता है और थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।